हेलो हेलो। आवाज आ रही है क्लास? हेलो हेलो। अभिषेक कुमार, मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। अभिषेक कुमार, हेलो। अभिषेक कुमार, आवाज आ रही है? हेलो अभिषेक कुमार, आवाज आ रही है? क्लास। हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, okay, so today we will start with the file transfer protocol of unit 5. So start with the session layer. So sorry, application layer. Clear? So it is a type of application layer protocol. So as you all know, application layer is the topmost layer of the OSI model. Clear? So if I share you the, just share you the file. हेलो, ये शेयर हो रहा है सभी को? देखिए, नो सर। शेयर टू ऑल ऑफ यू। ये शेयर हो रहा है? हाँ अब हो गया। Okay, so application, basically application layer provides services to the user. Communication is done using a logical connection. Clear? So in case of application layer, it is basically a user can access all the application through this application layer protocol. Clear? So exactly, the communication is done using a logical connection in this. So it means there is no virtual connection as such. So it is a type of imaginary connection that that exists between the nodes, exactly. Yeah, sending node and receiving node. Clear? So it is a type of virtual connection. Okay. So now one more thing which I want to share you all, that हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस सर। just wait just wait, I'm trying to share.
Okay, so this is exactly a type of protocol, basically, in which we can say the communication is provided using a logical connection, which means that two application layer assume that there is an imaginary direct connection through which they can send and receive messages. So you can say, as in case of network layer, we have discussed that when a user on the sender side want to communicate to the user on the receiver side, clear? So basically they communicate with the routers, intermediate routers in between them. So if you see, this is the diagram which we have discussed in the network layer also. So the alias want, suppose alias want to communicate with Bob. So what is it do? So basically it connects with the routers and then LAN and WAN that are in between intermediate points that link the source address or source message to the destination pair. So we can say it is a type of virtual connection that established due to the switched WAN or LAN technology, and then some routers that connects that message from the source end to the destination end. Now, in case of application layer, basically the communication is done through a type of logical connection. Clear? So you can say this is a logical connection where where the communication is a type of imaginary part. Clear? So imaginary type of connection is establishing. Clear? So we can say the communication is done not as a virtual type of connection. It is a type of imaginary connection. So you can say the application layer from the alias end directly connected with the logical connection is there with the Bob's end. Clear? So you can say clear. So the figure shows the same scenario we have seen for the other layer, but this time the logical connection is between two application layers. So now if I share you the another file. Now the application basically belong to some file transfer scheme. Just sharing. Is there any class or something else? बहुत सारे students late join कर रहे हैं. Hello. Okay. I think now they are. So now again sharing the file regarding FTP protocol. Okay. So ये दिख रहा है सभी को? Is clear? Yes, sir. Hello. Okay. So Yes, so sir. main this is the main transfer protocol consists in the application layer basically. So as you all know, application layer exactly deals with the topology in which we can manage the data which is transferring clear from one end to another end, manage and controlling the data. So the first thing which we'll discuss related to the application layer protocol is exactly the FTP. Here, that is the file transfer protocol. Okay, so I'm just showing you. So just wait, I'm trying to share you. Yeah. So this is the first transfer protocol in application layer. Clear? So it's very important regarding your exam also. So this in this particular transfer scheme. So
files from one computer to another is transferring. That is the one most common task expected from a networking or internet environment. Clear? As a matter of fact, the greatest volume of data exchange in the internet today is due to the file transfer. Exactly. जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम का डेटा, मतलब सबसे ज्यादा डेटा जो हम एक्सचेंज करते हैं थ्रू इंटरनेट, so that is exactly a type of file transferring scheme. Clear? So in this basically we will discuss this scheme. The first one is the file transfer protocol, then the anonymous of the FTP. So this is very important point. The FTP uses basically two services. Clear? पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, एक होता है फाइल ट्रांसफर सर्विस, क्लियर, डेटा ट्रांसफर सर्विस। तो दोनों के लिए हम अलग अलग पाथ यूज करते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए या कनेक्शन के लिए एक अलग पाथ होता है, कंट्रोल सिग्नल, सॉरी, जिसको हम कंट्रोल सिग्नल कहते हैं। तो कंट्रोल कनेक्शन इज ऑन ए वन पाथ, और जो आपका डेटा कनेक्शन होता है वो सेकंड पाथ पे होता है। ठीक, ये आपका जो ट्रांसफरिंग स्कीम यूज करता है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो टीसीपी यूज करता है। टीसीपी इसमें यूज करते हैं। टीसीपी आप लोग को पता है, ने आपको पढ़ाया था नेट उसमें लास्ट यूनिट में। टीसीपी टीसीपी एक क्या है? टीसीपी इज ए ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट इज ए टाइप ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। क्लियर? इसमें क्या होता है, बिफोर गोइंग टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन, सॉरी, बिफोर गोइंग टू ट्रांसफर ए डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन इज देयर। क्लियर? तो सबसे पहले तो ट्रांसफर करने से पहले डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना जरूरी होता है। Clear? This is the category of the this is the part of the TCP. Clear? So ये एग्जैक्टली दो टीसीपी कनेक्शन को होल्ड करता है। एक होता है जिसको मैंने बताया कंट्रोल कनेक्शन, दूसरा होता है डेटा कनेक्शन। तो कंट्रोल कनेक्शन होता है वो पोर्ट 21 उसके लिए डिफाइंड है। पोर्ट 21 इज डिफाइंड फॉर द कंट्रोल कनेक्शन, while पोर्ट 20 इज डिफाइंड फॉर द डेटा कनेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है कि एफटीपी में जो कंट्रोल कनेक्शन है वो पोर्ट 21 के थ्रू होता है, और जो डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है वो पोर्ट 20 के थ्रू होता है। ठीक है? नाउ दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन इज डन। क्लियर? तो ये के आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट है, एक सर्वर है। सो क्लाइंट एग्जैक्टली व्हाट वांट टू एक्सेस विद द सर्वर। क्लियर? सो सबसे पहले आप देख लीजिए क्लाइंट क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है। क्लाइंट में हमारे पास है यूजर इंटरफेस, देन कंट्रोल प्रोसेस, देन डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। क्लियर? सो यूजर एग्जैक्टली जो यूजर होता है वो यूजर इंटरफेस से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। देन वी हैव द कंट्रोल प्रोसेस, देन वी हैव द डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। डेटा ट्रांसफर प्रोसेस इज आल्सो कनेक्टेड विद द डिस्क, that is a type of memory where the data is stored. Clear? Which is communicated, the data जो communicate हो रहा है वो यहाँ stored होता है। फिर we have a control connection, you can see that connects the control processes. Clear? And we have the data connection that is connected between the data transfer process. So on the server end we have a control process and data transfer process, that is same on the client end also. Client is also having the user interface, that is the different part that is not consist into the server end. Clear? So the data transfer process on the server end also consists a disk. Clear? This is the drive where the data is stored on the server end also. So this is the basic prototype. Yeah, this is the basic diagram for the FTP protocol. Clear? So if you see how the communication is done, means user just accessing the data to the user interface. So user first of all at the client end, user accessing the data to the user interface. Then before data transfer we need a connection establishment. So control process exactly क्या करता है, it just पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कम्युनिकेशन करना है, क्लियर, कोई आपको सपोज कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए पहले हम उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। क्लियर? और
उस डेटा को टाइप करेंगे जो डेटा हमको ट्रांसफर करना है, क्लियर, या डेटा हम उस पैकेट को तैयार करेंगे, रेडी करेंगे, देन वी कैन एक्सेस दैट डेटा, क्लियर। और उससे पहले भी हमें सर्वर, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो रही हैं वो भी हमारी मैनेज हो, मतलब प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया, क्लियर। इस तरह से जो कम्युनिकेशन होगा वो भी प्रॉपर होना चाहिए, देन कम्युनिकेशन आपका, तब आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक सिंक मैसेज होता है, जो सिंक मैसेज एग्जैक्टली जैसे कंट्रोल सिंक मैसेज क्लाइंट ने सर्वर की तरफ भेजा, देन क्लाइंट ने सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजा जो कि टीसीपी के अंदर होता है, टीसीपी एस्टेब्लिशमेंट। फिर आपका क्लाइंट ने अगेन एक एक्नॉलेजमेंट भेजा, इट मींस now we are properly in the connection, now we can exchange the data, clear। So this is the process। so control, exactly control process क्या है? कंट्रोल प्रोसेस बेसिकली सिस्टम को, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे जब तक ये डेटा ट्रांसफर चल रहा है, देन कंट्रोल कनेक्शन will establishes, या control process will check out the whole scene that the connection is established or not, is there any issue with the connection। तो ये सारी चीजें वो चेक करता रहेगा, देन डेटा विल बी ट्रांसफर। जैसे ही डेटा ट्रांसफर क्लोज होगा, स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल कनेक्शन इज नॉट गेटिंग टर्मिनेटेड, क्लियर। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ यू कैन से यूजिंग द कंट्रोल कनेक्शन, बेसिकली यहाँ पे suppose we have a control process, so at the client end there is a local code, clear, local codes, that is the byte information that may be exchanged through the control process, clear, and that is a type of ASCII character, we can say। so ASCII character is exactly transmitting from this control process on the client end to this control process on the server end, and that is again forming a local code, clear। so it is a so you can say using the data connection, what we are doing, so that initially it was discussed about the control connection, now there is a data connection। so data connection is exactly having a local data type and structure, and this is exchanged with the data transfer process on the client end, then through the server end we can have a data connection, clear। so data connection exactly having the file type, data structure, the transmission mode and defined by the client। ये जितनी चीजें हैं, जैसे फाइल टाइप क्या है, किस तरह की फाइल है, ऑडियो फाइल है या टेक्स्ट फाइल है या किस तरह की फाइल है, ठीक है, वीडियो फाइल है, तो ये जो फाइल टाइप है ये आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा। देन डेटा स्ट्रक्चर मीन्स किस तरह का डेटा है, स्ट्रीम ऑफ डेटा है या ब्लॉक्स ऑफ डेटा है, क्लियर, ये सारी चीजें आपकी डेटा स्ट्रक्चर में आ जाएंगी। देन ट्रांसमिशन मोड, क्लियर, देन ट्रांसमिशन मोड, तो ये सारी चीजें आपकी जो है ये सब हमारा इसके अंदर कंसिस्ट होता है। जो भी कनेक्शन के अंदर जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट हुआ कनेक्शन, उसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होने जा रहा है, ठीक है। फिर हमारा सर्वर एंड है, सर्वर एंड पे ये सारी चीजें रिसीव होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगेन वी हैव ए लोकल डेटा टाइप एंड स्ट्रक्चर, क्लियर, ऑन द सर्वर एंड, which again contain the information which is transmitted, and then we have a disk where we prepare the data। so एक तरह से इसमें ये देख सकते हैं आप कि जो भी, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट है, कोई डेटा एक्सेस करना चाह रहा है, तो पहले तो सर्वर एंड पे अगर उसको एक्सेस करना है तो सर्वर के पास एक मेमोरी लोकेशन होगा जहाँ पे वो उस फाइल को एक्सेस करेगा। जैसे मान लीजिए इंटरनेट के थ्रू कोई डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप पहले मान लीजिए कोई आपने वेबसाइट कोई यूआरएल पे या कोई वेब पेज को एक्सेस करना है, तो आपने उसको एंटर किया, देन इट विल सेंड टू द सर्वर थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन, क्लियर। वो सर्वर के पास गया, सर्वर ने उसको अपने बैकअप, जो जहां उसके पास डेटा स्टोरेज है, जैसे ये डेटा स्टोरेज हो गया, वहां पे उसने एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद जो आपने सर्च किया वो उसको निकालेगा, फिर इट विल अगेन सेंड द डेटा टू द क्लाइंट, ठीक है। तो जो क्लाइंट ने डेटा को सर्च किया था उसके रिगार्डिंग उसने रिक्वेस्ट भेजी थी सर्वर एंड पे, सर्वर ने उसको अगेन अपने मेमोरी या डेटा स्ट्रक्चर यहाँ से इसको सर्च किया लोकल डेटा टाइप एंड स्ट्रक्चर से, देन इसने जब उसको इसको वो मिल गया डेटा,
and again it has sent back to the client end. Clear? And then client ने उसको डाउनलोड भी कर सकता है, क्लाइंट अपलोड भी कर सकता है, क्लाइंट के पास सारी पावर है। तो उसको जैसे मान लीजिए अगर वो डाउनलोड करना चाहता है या अपलोड करना चाहता है, तो अकॉर्डिंगली इट विल टेक द एक्शन इन द लोकल डेटा टाइप एंड स्ट्रक्चर ब्लॉक। क्लियर? ये सबको समझ में आ रहा है जो भी मैंने बताया है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Okay, okay. Now I am again sharing you. Just wait. Just wait. I am sharing you this another file. Just wait. So just wait. I have got the access on that. So if you see again, clear. So if you see, we can say the file transfer protocol basically provides for the transfer of file from one machine to another machine. This is the basic function of the FTP protocol. It basically provides the transfer of file from one end to another end. It requires two TCP connection. One is for the control connection and another is for the data connection. Data connection आपका port 20 से होता है, control connection port 21 से होता है. You can say ये diagram हम लोगों ने भी discuss कर लिया है. Clear? So the control connection is established from the user to the server port. So FTP commands and replies, जो भी FTP request भेजेगा या उसका reply आएगा वो सब आपका control connection के through होता है. ये भी हमने आपको बताया था, जो भी connection establishment के दौरान जो भी request या जो command या request transfer होती हैं and एक one end to another end, वो सब आपका control connection के through होता है. Then next one is your the user protocol interpreter, that is PI, is responsible for sending FTP command. यूजर प्रोटोकॉल इंटरप्रेटर होता है, जैसे PI जिसको हम बोलते हैं, या यूजर एंड से समझ लीजिए, इसको आप यूजर भी कह सकते हैं. तो जो यूजर है यही आपका जो है यूजर इंटरफेस के थ्रू जो भी कमांड आपके ट्रांसफर होते हैं वो यहाँ से कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होते हैं. ठीक है? It is responsible for sending FTP command and interpreting the replies. The server PI is responsible for interpreting command, sending replies and directing the server data transfer process. Clear? That is a DTP. To establish a data connection and transfer. The command are used to specify information about the data connection and transfer. Clear? So a data connection is established usually upon request from the user PI, some port of the file operation. So the user PI using a port command. कौन सा पोर्ट कमांड यूज करेगा? कंट्रोल कनेक्शन के लिए. कंट्रोल कनेक्शन के लिए हम लोग कौन सा पोर्ट कमांड यूज करते हैं? 21. So upon receipt of the port number via the control connection, the server issues an action open to that same port. मतलब उसी सेम पोर्ट पे जो सर्वर होगा वो भी एक एक्शन मतलब एक कमांड भेजेगा जो that is कि मतलब now I am open to access that data. Clear? So the server always uses port 20 for its end of the data connection. The user DTP then waits for the server to initiate and perform the file transfer. और जब ये दोनों डेटा एक्सचेंज मतलब ये कम्युनिकेशन हो जाएगा, जब उसने रिक्वेस्ट भेजी तो उसने रिप्लाई कर दिया with the same port number, now I am open to access the data. Then user then waits for the server to initiate and perform the file transfer. तब वो यूजर फाइल ट्रांसफर कर सकता है. तो यूजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्वेस्टिंग ए क्लोज ऑफ द कंट्रोल कनेक्शन. अब जब कम्युनिकेशन हो जाएगा तो यूजर उस कम्युनिकेशन को क्लोज भी करना चाहेगा, कनेक्शन को. Although the server perform the action, if the control connection is closed, उस control connection close हो गया while the data connection is still open, then the server may terminate the data transfer
and the data connection is usually closed by the server. Clear? So in general, basically 3 types of information must be specified. तो 3 तरह की information है जो generally specify होती हैं. So for the default specification must be supported by every FTP implementation. So file type. सबसे पहले जो 3 तरह की information है हमारे पास, उसमें file type is the first one. तो फाइल टाइप जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बताता है कि किस तरह की फाइल है. ठीक है, जैसे इट हैविंग अ बिट टाइप ऑफ स्ट्रीम डेटा, मतलब ये आपका ASCII कैरेक्टर्स हैं, या EBCDIC है, या इमेज फाइल है दैट कंटेन्स द बाइनरी फॉर्म ऑफ डेटा. क्लियर? इमेज हम लोग जनरली बिट्स बाय बिट्स इमेज को स्टोर करते हैं. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द इमेज फाइल. सो ये स्पेसिफाई करेगा किस तरह की फाइल है. ठीक है, एंड द डेटा इज टू बी ट्रांसफर इन द logical bytes. So where the size is specified in a separate parameter. ASCII generally default होता है file type. ASCII characters जो हमारे होते हैं वो that is the default file type. And data structure. Data structure exactly क्या है कि इसमें जो FTP जो हमारा जो भी file structure को support करता है, record structure and page structure. इसके अंदर 3 पार्ट हैं: file structure, record structure and page structure. तो ये तीनों आपका डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है. फाइल स्ट्रक्चर जनरली डिफॉल्ट हमारा स्पेसिफिकेशन होता है, तो हम लोग जनरली यूज करते हैं. क्लियर? उसके बाद द नेक्स्ट वन इज द ट्रांसमिशन मोड. ट्रांसमिशन मोड में क्या है, बेसिकली FTP जो सपोर्ट करता है वो स्ट्रीम, ब्लॉक्स और कंप्रेस मोड को सपोर्ट करता है. स्ट्रीम का मतलब है कि जो भी डेटा है आपका वो बाइट बाय बाइट या बिट बाय बिट ट्रांसमिट हो रहा है. जैसे जनरली हम लोग टेक्स्ट मैसेज ज्यादा यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो आपका बिट बाय बिट या बाइट बाय बाइट ट्रांसमिशन होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम मोड. क्लियर? ब्लॉक और कंप्रेस मोड में क्या है, ब्लॉक मोड में जैसे मान लीजिए कोई हमें बिट या बाइट ट्रांसफर करनी है, तो उसको हम ब्लॉक्स में भी डिवाइड कर सकते हैं. छोटे छोटे ब्लॉक बना लेंगे. एक ब्लॉक में हमारे पास 4 बाइट है या 5-6 बाइट हैं, 5 बाइट हैं, वो सब आपकी ब्लॉक बाय ब्लॉक भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको ब्लॉक फॉर्म बोलते हैं. एंड द लास्ट वन इज द कंप्रेस्ड मोड. कंप्रेस्ड मोड में क्या होता है, कंप्रेस्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कि जो भी आपका डेटा है, अगर मान लीजिए वो बहुत ज्यादा लेंथ का है, जैसे वीडियो फाइल वगैरह होती है वो काफी ज्यादा लेंथ की होती है, तो उनको ट्रांसमिट करने में डिले बहुत आता है. डिले भी आता है और आपका लॉसेस के चांसेस भी रहते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको कंप्रेस कर देते हैं. वी जस्ट ट्राई टू कंप्रेस दैट डेटा. उसको कंप्रेस करने से क्या होता है, फाइल साइज छोटा हो जाता है और वो कम टाइम पे ट्रांसमिट भी हो जाता है. ठीक है, तो अगर आपका जो डेटा है वो ब्लॉक स्ट्रक्चर का है, तो देन वी हैव a special 2 byte sequence indicates end of record and end of file. क्लियर? सो द डिफॉल्ट हमारा जो भी है वो स्ट्रीम मोड है. ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? हेलो, इज क्लियर? हेलो, आवाज आ रही? हेलो, Yes, sir. मैंने पूछा ये समझ में आ गया जो भी समझाया मैंने? Yes, sir. ओके. सो यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि मतलब जो हमारा ट्रांसमिशन मोड है वो जनरली स्ट्रीम फॉर्म में ही डेटा जनरली ट्रांसमिट होता है. ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, so if you see about the just wait. So these are the basically application or layer category basically. So application layer category is exactly involved in the OSI and TCP/IP model. Basically we can see. So these are the category in the application layer. So DNS server, then Telnet server, then email server, then DSCP server.
then web server, and then FTP server. Clear? So these are the basic category of the we can say for the application layer. So we are just discussing about the FTP server right now. Is it clear? So if we talk about the services that is provided by the application layer, so application layer services में जैसे पहला DNS है, DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम. तो डोमेन नेम एग्जैक्टली क्या है? जो डोमेन नेम हमारा क्या है? डोमेन नेम एग्जैक्टली जैसे कोई भी हम लोग एड्रेस टाइप करते हैं, वेब एड्रेस, तो उसमें जैसे या हम लोग कोई ईमेल टाइप करते हैं, मेल एड्रेस टाइप करते हैं, तो @ कुछ लिखते हैं. तो जो पहला वाला पार्ट है वो यूजर नेम होता है, एंड द लास्ट वन @ के बाद जो होता है वो डोमेन नेम कहलाता है. या जैसे .com हो गया, .in हो गया, ठीक है, ये सब जो जितने भी .org हो गया, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका डोमेन नेम कहलाते हैं. ठीक है. तो जो पोर्ट 53 जनरली होता है इसके लिए यूज करते हैं. उसके बाद जैसे हम बात करें टेलनेट, टेलनेट आप लोग को पता है, it is also access to server and network devices, that is port 23 and 22 यूज करते हैं. SMTP is a simple mail transfer protocol, that is the transfer of mail or messages and attachment. इसमें port 25 यूज होता है. ठीक है. तो उसके बाद IMAP है, then POP है. POP is the post office protocol that is used for the transfer of mail messages and attachments. इसमें हम लोग पोर्ट 110 और 995 यूज करते हैं. देन वी हैव IMAP that is इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसमें पोर्ट 143 यूज करते हैं. देन DSCP, ये सब हम लोग इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे. क्लियर? देन वी हैव HTTP also, that is hypertext transfer protocol, that is also used to transfer files and that makes up web pages. That is port 80 and 443 यूज करते हैं हम लोग. FTP हमने आपको बताया, दिस इज इंटरेक्टिव फाइल ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम. इसमें पोर्ट 20 एंड 21 हम लोग यूज करते हैं. क्लियर? इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हो रहा है? So application layer protocols are used by both the source and destination devices using a communication session. So the application layer protocols implemented on the source and destination host must match. Clear? So application layer basically uses protocol that are implemented within application and services. It provides people a way to create messages. Clear? And application layer services establish an interface to the network. Protocols provide the rule and formats that govern how data is treated. Clear? So application का मतलब होता है it provides people a way to create messages, जिससे आप मैसेज क्रिएट करते हैं. एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज एस्टेब्लिश एन इंटरफेस टू द नेटवर्क, एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा किससे कैसे आप सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हैं. प्रोटोकॉल बेसिकली प्रोवाइड द सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्मेट दैट गवर्न हाउ द डेटा इज ट्रीटेड. Clear? So these are some application layer software. So application layer provides protocol are used by both the source and destination. This is over. So if you see the application layer software, so it includes the IP header, TCP header, HTTP header, and then data. Clear? So now before going to discuss these things, so FTP में अभी FTP आप लोग को समझ में आ गया? FTP हमने अभी आपको समझाया है. FTP समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. हेलो. तो FTP में पहला जो पार्ट है FTP, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये पेपर में पूछा भी जाता है. FTP आपका सिंपल एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. ठीक है. तो इसमें जनरली क्लाइंट सर्वर से एक्सचेंज करता है फाइल को. ठीक है. और इस एक्सचेंज में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा डेटा है वो एक्सचेंज, चूंकि ये टाइप ऑफ TCP कनेक्शन को फॉलो करता है, तो इसमें कनेक्शन पहले स्टेब्लिश करते हैं फिर डेटा को एक्सचेंज करते हैं. इस चीज आपको ध्यान रखनी है. तो बिफोर गोइंग टू एक्सचेंज द
data, we have a connection establishment. So you can say the communication in FTP basically हमारा जो communication और control connection पहले establish होता है, तो इसमें FTP uses a set of ASCII character to communicate across control connection. Then we have communication over data connection. So जब control connection establish हो जाता है, then we exchange the data clear through the logical file, local file system. Local file system से data उठाया, then data को process करना शुरू किया client ने, then इसको server end पे भेजा clear. उसके बाद सर्वर ने भी इसको रिमोट फाइल सिस्टम से लोकेट किया, देन इट इज अगेन एक्सचेंज टू द क्लाइंट एंड. फाइल टाइप में हमने आपको बता दिया, इट कैन ट्रांसफर वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप, ASCII फाइल, EBCDIC फाइल और इमेज फाइल. डेटा स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया कि फाइल स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड पेज स्ट्रक्चर को फॉलो करता है. ये बेसिकली जो फॉलो करता है वो फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जो कि डिफॉल्ट है. ठीक है ना. इसके बाद हमने आपसे बताया कि डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हमारा जो किस किस तरह से हमारा डेटा कोई एक्सेस कर सकता है. ट्रांसमिशन मोड, देन ब्लॉक मोड एंड कंप्रेस मोड. कंप्रेस मोड अगर हमारा देखें तो ये बिग फाइल्स के लिए होता है. अगर फाइल हमारी बहुत बड़ी है तो उसको पहले कंप्रेस करता है ट्रांसमिशन से पहले, तो इट इज ए कंप्रेस मोड. ब्लॉक मोड में क्या है, ब्लॉक मोड इज एग्जैक्टली उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में रेडी कर लेगा. जैसे जो बाइट्स है हमारे, उसको अगर ब्लॉक्स बाय ब्लॉक ट्रांसमिट करना है तो इट इज इन द कैटेगरी ऑफ ब्लॉक मोड. क्लियर. इसके बाद जो पहला वाला था ट्रांसमिशन मोड में, वो दैट इज स्ट्रीम मोड. स्ट्रीम मोड में कंटिन्यूअस डेटा हमारा स्ट्रीम फॉर्म में जो टेक्स्ट मैसेज होते हैं वो सब आपके स्ट्रीम मोड का पार्ट है. ठीक है. दैट इज द कैटेगरी ऑफ स्ट्रीम मोड. देन फाइल ट्रांसफर में हमने आपको बताया कैसे फाइल ट्रांसफर होती है. इसमें सबसे पहले रिट्रीविंग होती है, देन स्टोरिंग होती है, देन रिट्रीविंग लिस्ट इज देयर. सो डेटा प्रोसेस टू डेटा प्रोसेस में सबसे पहले रिट्रीव करता है फाइल को. रिट्रीव का मतलब है कॉपीइंग ए फाइल फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट, इसको डाउनलोडिंग कहते हैं. स्टोरिंग फाइल में क्या होता है, क्लाइंट टू सर्वर वो अपलोड होती है फाइल. ठीक है. देन रिट्रीविंग फाइल में क्या होता है, लिस्ट ऑफ फाइल्स ऑब्लिक डायरेक्टरीज फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट. दिस इज द थर्ड वन. क्लियर. So these are some three file transfer process. पहले retrieve, then storing, then again retrieving list. Clear. और FTP कमांड में कुछ कमांड यूज करता है, जैसे get कमांड यूज करता है जो कि फाइल को एक्सेस करने के लिए है सर्वर से क्लाइंट की तरफ. पुट कमांड यूज करता है जो कि क्लाइंट टू सर्वर एंड है. देन कनेक्ट टू रिमोट होस्ट, इसमें आपका ओपन यूजर एंड पास है. टर्मिनेट करने के लिए सेशन, बेसिकली if we talk about for the termination of connection, terminate जैसे जब एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, देन टर्मिनेट करने के लिए quit एंड क्लोज कमांड यूज करता है. quit is used for the disconnect from the remote host and terminate FTP. quit में क्या है, पूरी तरह से कनेक्शन ब्रेक नहीं होता है, कंट्रोल कनेक्शन एस्टेब्लिश रहता है, स्टिल द FTP फाइल ट्रांसफरिंग इज क्लोज. बट क्लोज में क्या होता है कि पूरी तरह से कनेक्शन क्लोज हो जाता है. तो टर्मिनेशन में आपके दो हैं, क्विट एंड क्लोज. क्विट इज नॉट कंप्लीट